اگر رمضان کے مہینے میں تیرے پیٹ میں بچہ ہو تو رمضان کا روزہ رکھنے کی وجہ سے اس بچے کی اگر صحت پہ اثر پڑ رہا ہو، اے مسلمان ماں رمضان کا روزہ چھوڑ دینا، اس بچے کی صحت کا خیال رکھنا۔ آپ جانتے ہیں رمضان کا روزہ کیا ہے؟ فرمایا سارے اعمال کا بدلہ فرشتوں کے ہاتھوں دلواؤں گا۔ جب باری آئے گی نا روزے کی جزا دینے کی تو میں خود پردے ہٹا کر خود بدلہ دوں گا، یا پردے ہٹا کر اپنا دیدار کر کے روزے کا بدلہ بن جاؤں گا۔ یہ روزہ ہے۔ لیکن کہا عورت اگر بچے کی صحت پہ اثر پڑ رہا ہے تو رمضان کا روزہ چھوڑ دے، بعد میں قضا رکھ لینا، بقرعید کے بعد رکھ لینا اور 6 مہینے کے بعد رکھ لینا، لیکن ابھی اس وقت بچے کی صحت کا خیال رکھ۔ رمضان کے مہینے میں ماں بچے کو دودھ پلا رہی ہے، اسلام کا دوسرا حکم آیا کہ ماں اگر تیرے رمضان کے روزے رکھنے کی وجہ سے تیرے دودھ میں کمی آ رہی ہو اور بچے کی صحت پہ اثر پڑ رہا ہو، اے مسلمان ماں رمضان کا روزہ چھوڑ دے، بعد میں قضا رکھ لینا، ابھی اس بچے کی صحت کا خیال رکھ۔ اسلام نے آپ کی صحت کا خیال کیا ہے، جیم جانے سے آپ کو اسلام نہیں روکے گا، صحت کے لیے چاہے ہاں آپ پب جی کھولو گے یہ نقصان دہ گیم ہے، اس لیے اسلام یہاں روکے گا کہ پب جی کھیلنے سے دماغ میں شدت اور حرارت پیدا ہوتی ہے اور جو ہے انسان آتنکوادی بن جاتا ہے، زیادہ دنوں تک جب پب جی کھیلتا ہے تو انسان دہشت گرد بن جاتا ہے۔ نیوزی لینڈ کا واقعہ ہوا، جس شخص نے مسجد میں نمازیوں کو بھون کے رکھ دیا تھا وہ پب جی کھیلنے والا تھا۔ اے بچوں اگر گواڑ میں 1 بجے تک وہاں تم ڈشن کرتے رہو گے تو تمہارے دماغ میں اتنی گرمی آ جائے گی کہ جب 1 بجے گھر پہنچو گے امی دروازے پہ انتظار کر رہی ہوگی کہ میرا لال ابھی تک کیوں نہیں آیا، لیکن جب تو گھر پہنچتا ہے ماں کہتی ہے بیٹا تھوڑا جلدی آ جایا کر، 1 بجے ہی بیٹا جب تک تو گھر نہیں آتا مجھے نیند نہیں آتی۔ لیکن یہ پب جی کھیلنے والے کا دماغ گرم ہو چکا ہے کہ چپ رہنے تو نہیں ڈشن کر دوں گا، چپ رہ۔ یہ پب جی اسلام ایسے گیموں کی اجازت نہیں دے گا کیونکہ اس میں انسانیت کا نقصان ہے، لیکن آپ صحت کے لیے ناجائز کھیل کھیل رہے ہیں تو پھر آپ کو اسلام نہیں روکے گا۔ اسلام تنگ نظری کا نام نہیں ہے۔ آج کل ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ اگر ہم دین کی طرف آئیں گے تو سارے ہمارے چونچلے چھوٹ جائیں گے، سارے شوق چھوٹ جائیں گے، سارے کاروبار ٹھپ ہو جائیں گے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ جو ہے اگر اپنے بزنس میں رہ کر اپنے کاروبار میں رہ کر اسلام پہ چلتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، اپنے کاروبار میں سچائی لائیے، ایمانداری لائیے۔ نبی نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، کہ سچائی اور دیانتداری کے ساتھ کاروبار کرنے والا، تجارت کرنے والا کل قیامت کے میدان میں نبیوں کے ساتھ اٹھے گا، صدیقین کے ساتھ اٹھے گا، شہیدوں کے ساتھ اٹھے گا۔ کوئی مشکل ہے دین پہ چلنا، ہم نے ہی مشکل سمجھ رکھا ہے۔ اسلام میں کہتا ہوں ہر شعبے میں رہ کر اپنے شعبوں میں رہ کر تم جنت کما سکتے ہو۔ جنت کمانا کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن ہم ارادہ ہی نہیں کرتے۔ بس اٹھو نا صبح، آنکھوں پہ آپ نے ہاتھ ملا، اس کے بعد دیکھو نا ماں باپ کو محبت اور عقیدت کی نگاہ سے مقبول حج عمرے کا ثواب ملے گا۔ ہم جو حج کرنے جاتے ہیں، جو مالائیں پہنائی جاتی ہیں، پوچھنا علماء کرام سے قبول ہوا یا نہیں ہوا کوئی پتہ نہیں ہوتا، لیکن صبح اٹھ کر ماں باپ کے چہرے پہ محبت کی نگاہ ڈال دے، مقبول حج عمرے کا تجھے ثواب ملے گا، ثواب ملے گا۔ ماں تیرے لیے جنت ہے، ماں کے قدموں میں جنت کو رکھ دیا گیا، باپ کو جنت کا دروازہ بنا دیا گیا، بڑے بھائی کو باپ کے برابر قرار دیا گیا، استاد کو باپ کے برابر قرار دیا گیا، پھوپھی کا درجہ باپ کے برابر قرار دیا گیا، خالہ کا درجہ ماں کے برابر کر دیا گیا، اور اگر تجھے اللہ نے بہن دی ہے تو بہن سے بھی جنت گوا سکتا ہے۔ نبی نے فرمایا اللہ نے جس کو 2 بہنیں دی، نام اچھے رکھو، تعلیم اور تربیت کا انتظام کرو، ان کا
का निकाह कर दो, ऐसे भाइयों पे जन्नत वाजिब हो जाती है। अल्लाह ने किसी को 2 बेटियां दी, नाम अच्छे रखो, तालीम और तरबियत का इंतजाम करो, उनका निकाह कर दो, ऐसे माँ बाप पे जन्नत वाजिब हो जाती है। नबी ने फरमाया कल क़यामत के दिन उसका घर जन्नत में मेरे घर के सामने होगा जो अपनी बेटी को इज्जत देगा। हाय हाय, सिर्फ कहानी करके दिखाया। जब छोटी बेटी फातिमा मिलने आती थी ना, तो नबियों का सरदार खड़े हो जाया करते थे। साहबा ने पूछा अल्लाह के रसूल, ये आपकी छोटी और सबसे छोटी बेटी फातिमा है, इसके लिए आप खड़े हो जाते हैं, आप तो नबियों के सरदार हैं। फरमाया तुम्हारी निगाहों में ये छोटी बच्ची है, मेरी निगाहों में जन्नत की औरतों की सरदार है। मैं क्यों ना खड़ा हूं? मेरी बेटी फातिमा वो बेटी है जिससे देख के खुदा के फरिश्ते भी खड़े हो जाया करते हैं। इज्जत दी बेटी को, पेशानी चूमते, बहन को इज्जत दी। आज मीडिया वाले बकवास करते हैं ना कि इस्लाम ने औरत को इज्जत नहीं दी, इस्लाम ने औरत पे जुल्म किया, इस्लाम ने औरत को घर में बंद कर दिया, इस्लाम ने औरत को कैदी बना के रख दिया। अरे बकवास करने वालों, कहीं थोड़ा सा पढ़ भी लिया करो। अगर इस धरती पर औरत को किसी ने इज्जत दी है तो वो सिर्फ इस्लाम है, बाकी सबने औरत को रुस्वा किया है। अब पढ़ो अपनी किताबें, लाओ ऐसी मिसालें। पहले बाप अपनी बेटी को जिंदा जमीन में गाड़ता था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके ऐलान किया कि नाम अच्छे रखो, निकाह तक जीने दो इनको, इनका तालीम और तरबियत का इंतजाम करो, तुम पे जन्नत वाजिब होगी, जन्नत तुम्हारा इंतजार करेगी। इस्लाम में फरमाया अगर औरत बेटी है तो उसके सर पे शफकत की चादर है, अगर औरत बहन है उसके सर पे इस्मत की चादर है, औरत अगर बीवी है उसके सर पे वफा की चादर है। औरत जब माँ बन जाए जन्नत माँ के कदमों के नीचे आ जाए। कोई मकाम दे सकता है औरत को ऐसा? किसी धर्म ने दिया हो तो ले आए, किसी धर्म में औरत के कदमों के नीचे जन्नत बताई हो तो बता दो। किसी धर्म में भी अगर औरत के कदमों के नीचे जन्नत बताई हो तो दिखा दो। नहीं दिखा सकते हो, क्यों जो है बकवास करते हो कि इस्लाम ने औरत को इज्जत नहीं दी है। खुदा की कसम, माँ का कोई मकाम नहीं था, कोई वैल्यू नहीं था। बाप का माल समझ के विरासत की तरह माँ तकसीम होती थी। कभी 5 बेटे मिलकर अपनी जो है सौतीली माँ से 5 बेटे जिना करते थे। औरत ने आके माँ को इज्जत दी है, उसकी कदमों में जन्नत को रखा है। बहन भाई अपनी बहन को सजाता और चौराहे पे खड़ा करता और फिर बोली लगाता और कहता फ्री में ले जाओ। बोली भी नहीं लगाना चाहता, ये मैं इसको घर भी नहीं रखना चाहता, मैं पसंद नहीं करता कि मेरा कोई बहनों कहलाए, इसलिए मैं बेच रहा हूं, ले जाओ इसको। ये तुम्हारे दूर की बातें नहीं कर रहा हूं, तुम्हारे हिंदुस्तान में ये गोरखा कौम जो थी, ये शाहबुद्दीन गौरी के जमाने में गोरखे क्या करते थे, अपनी बेटी को बाप सजा के दरवाजे पे खड़ी करता, 2 घंटे तक खड़ा रहता। अगर बिक जाती है तो ठीक है, वरना बाप अपनी बेटी को कत्ल कर देता। ये इस्लाम ने औरत को इज्जत दी है, बहन को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इज्जत दी। हकीकी बहन तो कोई थी नहीं, लेकिन जब दूध पिलाने वाली माँ हलीमा की बेटी जब शीमा आई, नबी को पता चला कि दूध पिलाने वाली माँ की बेटी बहन शीमा आ रही है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी तेज रफ्तारी से उठे, कंधों से चादर गिर पड़ी और लपक कर आगे गए। वहां का बिलाल, जी आमीना के लाल, फरमाया वो मेरी चादर लाओ। करना क्या है? कहा मेरी बहन आ रही है, उसके कदमों में बिछाना है चादर को। यह चादर कौन सी थी? ये वो चादर थी जिसकी कसमें अल्लाह अर्श पे खाता है। उस चादर को एक एक उस चादर के धागे पे अर्श बरी से इफ़्फ़त की मुहरें लगी हुई थी। नबी ने उस चादर को बहन के कदमों में बिछाया। तू कहता है ना मैंने बहन को जोड़े दिए, मैं बताता हूं मेरे नबी ने अपनी बहन को घोड़े दिए। तू कहता है जोड़े दिए, नबी ने अपनी बहन को घोड़े दिए। तू कहता है मैंने अलमारियां दी, नबी ने अपनी बहन को सवारियां दी। अब कीमत लगा लेना, अलमारियां महंगी हैं कि सवारियां महंगी हैं, जोड़े महंगे हैं या घोड़े महंगे हैं। बेटी को देना मना नहीं है, याद रखना, बेटी को देना मना नहीं है,
जहेज की रस्म इसलिए में इस्लाम में इसीलिए मना हो गई कि जहेज की रस्म से गरीबों का खून चूसा जाता है। गरीबों की बच्चियां 30-30 साल को पहुंच जाती हैं, 10-10 साल तक माँ को नींद नहीं आती, निकाह नहीं कर पाती। इसलिए जवानों, छोकरों, ये शर्तें मत रखा करो कि मोटरसाइकिल दोगे तो ही निकालूंगा। अरे तुम मर्द हो, अल्लाह ने तुम्हें बाजू दिए हैं, तुम कांच के शीशों से भीख मांगते हो। एक सहाबी एक ऊंट की मुहार पकड़ के चल रहे थे जिस पे औरतें सवार थी, थोड़ा सा ऊंट तेज चलाया, नबी ने फरमाया मेरे यार जानिसार, वफादार, ताबेदार, हब्बेदार, जरा सुन, ऊंट को जरा आहिस्ते चला, इस ऊंट के ऊपर कांच के बर्तन है, ये नाजुक है, इससे तू मांगता है। अरे तुझे बाजू दी अल्लाह ने, कमा के खा, नाजुक शीशे से भीख मत मांग, ये शर्तें मत रख। ये जहेज की रस्म बुरी है, ये वही हशर करती है जो गुजरात की बच्ची का राजस्थान वालों ने किया। जालोर का था ना आरिफ, राजस्थान पे दाग लगा दिया ना, गुजरात की बच्ची के साथ जो हुआ, ये जहेज की रस्म है, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। लेकिन आप छुप छुप के बेटी को जितना भी दे वो कम है, क्योंकि बेटी तो बाप की विरासत में हक रखती है, बेटी बाप के सारे प्लाटों में हक रखती है। तू अगर कुछ फर्नीचर दे देता है, बाहें ज्यादा चौड़ी मत किया कर, तूने कुछ फर्नीचर दे के उस पे एहसान नहीं किया है, वो तो बाप की सारी जागीर में हिस्सा रखती है, रखती है। बस फर्क ये है, जहेज की रस्म को खत्म कर दे, छुपके से अपनी बेटी को, दुनिया को क्या दिखाना है, तू किसी और की बेटी को दे रहा है, किसी पे एहसान कर रहा है जो दिखा रहा है, तू अपनी औलाद को दे रहा है, और उस औलाद को जो तेरी जायदाद में हक रखती है। तो इसलिए खैर मैं कहीं और न चला जाऊं, मैंने कहा कि जो है ये दुनिया दीनी तालीम में इतने लैक हो जाए कि जो है फिर दुनियावी तालीम से ही कोरे हो जाए, दीनी तालीम से ही कोरे हो जाए। आज वो तो है तो लड़कियों के लिए, लेकिन लड़कों को भी सुना दे तो क्या फर्क पड़ता है कि आजकल के लड़कों को पहला कलमा आता नहीं और इंग्लिश में बात करते हैं, मंत्री बन जाते हैं, कुल अल्लाह नहीं आता, सरपंच हूँ, पंच सर है, सरपंच है कि तेरा सरपंच, पंच का सर है, तेरे सर में बुलवाला नहीं आ सकती थी, छोटी सी सूरत इन्ना आतेना नहीं आ सकती थी, तू जो है पंच का जब सर है, तेरे सर में इन्ना आतेना अतहियात नहीं आ सकता था, इतना गाफिल क्यों हो। हसरत मुहानी ने कहा था, हसरत कल लिखेगा, तुम्हारे बारे में कहा था, हसरत कल लिखेगा दुनिया की हिस्ट्री में कि अंधेरा हो रहा था बिजली की रोशनी। बिजली का जमाना है, सॉफ्टवेयर आ गए नमाज पर, अतहियात का सॉफ्टवेयर, दुआ कुनूत का सॉफ्टवेयर, सिखाने वाले हर जगह मौजूद, हर गांव में मकतब, मदारिसों का फैलाव, और फिर लोग बेचारे तेरी थोड़ी पे हाथ रख फेर के कहते हैं अल्लाह के बंदे निकल दीन को सीखने के लिए, 3 दिन ही दे दे, 40 दिन ही दे दे, अपना जरूरी दीन सीख के आ, फिर भी तू कहे मुझे अतहियात को नहीं आवा है, मतलब दूध शरीफ को नहीं आवा है। तो हसरत मुहानी ने सही कहा था कि अंधेरे, बिजली की रोशनी में अंधेरा हो रहा है, ये बिजली का दौर है, ये जो रोशनी का दौर है, इस रोशनी के दौर में अंधेरे में न रहें, बल्कि ऑलराउंडर बने, दीन के भी होशियार बने, दुनिया के भी होशियार बने, दुनिया के भी होशियार बने, ऑलराउंडर बने, दीन से कोरे न रहे। हाँ इंग्लिश पढ़ो, फूलो, लेकिन अंग्रेज मत बनो, अंग्रेज मत बनो। ये हमारे अंदर फर्क है। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान हमारे कानों में पड़ता है तो जूं तक नहीं रेंगती, एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकाल देते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ इतना फरमाया था, मर्दो अपना पायजामा सलवार लुंगी टकने से ऊपर रखना, इतना ही फरमाया था नबी ने, इतना ही फरमाया। हमने नहीं माना इस सुन्नत को, बल्कि मुसलमानों ने मजाक उड़ाया, देखो देखो वो आ गया, छोटे भाई को पायजामा और बड़े भाई को कुर्तो पहन के आ गया। ये मजाक मुसलमानों ने सुन्नत का उड़ाया। नबी ने सिर्फ इतना कहा टखने से ऊपर करो, नहीं माना। अंग्रेज आया, बोला टखना क्या होता है, घुटने से ऊपर करना है। अब नेकर पहन के वो चट्टा पैर के ग्वाड़ में फिरे और झूम झाम के चाल रहा, मैं स्वरूप लागू, फुटरो लागू, मैं खूबसूरत लागू, मैं ब्यूटीफुल लागू। क्या को ब्यूटी तो आदो तो नंगो हो रही है और तू ब्यूटीफुल क्या हो गयो। तो अंग्रेज का कहना मान लेते हैं, नबी का कहना हमने नहीं माना, नबी का नहीं माना। तो वो कैसा भी दे दे, देखा ना आपने मालदार का बेटा
गोड्डा के ऊपर फाटोड़ी पैंट, तेरे बाप के ने पीसा को नहीं के खड़ाई पीसा है मोल साहब, वो तो फैशन है। और वो क्या को फैशन है, तो मजबूरी है। ये तो फिल्म शूटिंग वालों की मजबूरी थी कि फिल्म शूटिंग में शराब के नशे में चलते गए, कहीं गिर गया, फट गया, पेट फट गई, वो तुझे फैशन बना के दे दिया, तूने ले लिया। अम्मी मैं शादी भी नहीं जाऊंगा, क्यों? मेरे कपड़ा नहीं है। तेरे कोठा तो भरा पड़ा है, तेरे संदूक तो भरी पड़ी है, इतना की तरह कमरा भरा पड़ा है, केबी में फाटोड़ी पैंट नहीं है, गोटा पे फाटोड़ी चाहिए। क्या लगे क्या? देखा नहीं आप नौजवानों का? अरे बच्चे तेरी हेयर स्टाइल बता रही है कि तेरा आइडियल चेंज हो चुका है, किसी गंदी जिंदगी वाले को तूने अपने आइडियल बना रखा है। बेचारा दूर से नौजवान को आता देख के नाई भी परेशान, वो छोरो आ रहे के बोलो अब के बोल कहते तभी तो कहेगा जो है मेरे को मशरूम कट कराना है, कभी सोल्जर कट कराना, वो बेबी कट, हैप्पी कट, राउंड कट और कटोरा कट, क्या कट कट के तमाशे लगा रखे तुमने। किसको आइडियल बनाया? हाय आइडियल बनाना था उस हसीन को, उस नाज़नीन को, उस महजबीन को, उस बेहतरीन को, फिर यकीन को, शफीउल मुज़निबीन को, रहमतुल लिल आलमीन को, राहतुल आशिकीन को, मुरादुल मुश्ताकीन को, सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हसीनों में असद, जमीलों में अजमल, कामिलों में अकमल, शरीफों में अशरफ, नबियों में अफजल, मौलाए कुल, फख्र रसूल, हादी सुबल, साकी कौसर, शाफे महशर, कमरे लैलतुल कदर, बरतर बाला कदर, सारे रसूलों का सरवर, सारे अंबिया का अफसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रहबरो रहनुमा, बदरुद दुजा, शम्सुद दुहा, खैरुल वरा, अहमद मुस्तफा, मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाकी नबियों को अल्लाह ने चुना तो फरमाया इस्तफा, इन्नल्लाह इस्तफा आदम व नूहा व आला इब्राहीम व आला इमरान अलल आलमीन, यानी कायनात से जब नबियों को चुना तो फरमाया इस्तफा, फिर उन चुने हुए नबियों को, पहले नबियों को सबको इस्तफा, नूह इस्तफा, सालेह इस्तफा, आदम इस्तफा, शीश इस्तफा, याकूब इस्तफा, यूसुफ इस्तफा, ईसा, मूसा सब इस्तफा, यानी कायनात से नबियों को चुना तो फरमाया इस्तफा। फिर उन चुने हुए नबियों में से जब अल्लाह ने अपने महबूब को चुना तो फरमाया मोहम्मद मुस्तफा